Hello guys, very good morning to my channel Math Ki Kaksha. So today I'm going to discuss very important some derivations related to calculus, right? So how you can derive some formulas or like that. So many things is there you can derive from calculus, right? So right now we're doing discussing calculus in our all videos, right? So we'll continue with that. Now see, uh, what is force? What is force? यू विल सी कि पुश एंड पुल इज फोर्स, राइट? आप लोग ये जनरली बोलते हैं, हम लोग 9th क्लास में डेफिनेशन पढ़ते हैं जब, बट 11th क्लास में आप लोग पढ़ोगे तो पुश एंड पुल इज नॉट फोर्स, राइट? यू कांट से लाइक दैट. सो what is the meaning of force? Practically, if someone is asking what is the meaning of force, so force basically it is nothing, rate of change of momentum is force. I will explain here, don't worry about that. मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को कैलकुलस आता है, so I'm telling you seriously, if you know calculus you are genius. कैलकुलस आने का मतलब क्या है? मैथ्स आपको आती है, फिजिक्स आपको आती है, मार्केट में आपके पास जॉब है. ये दो ऐसी चीजें हैं. अभी भी ये कब कितना भी डेवलपमेंट हो जाएगा इंडिया में, कहीं वर्ल्ड में, ये दो चीज है तो आपके पास जॉब है. आपको खाने के बिना मरोगे तो नहीं, ऐसी चीज है. सही बता रहा हूं मैं आपको. सो मोमेंटम इज, हाउ कैन यू डिफाइन मोमेंटम? मोमेंटम हमें पता है क्या होता है. मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, राइट? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. सो हमें पता है बहुत सारे टर्म्स ऑलरेडी, वी नो दैट. हाउ कैन यू डिफाइन, सपोज फॉर एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? डिस्टेंस. बिफोर दैट, व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस इन 1 minute. Suppose for example, difference between distance and displacement. Suppose this is a point AB, right? If you're going from A to B, right? A to B and B to A, once return back, right? So here your initial point is once again the same. So here total distance you have traveled is AB and this distance. So basically you have traveled to AB. Suppose for example this distance is 100, so you can say it is you have traveled 200. But I'm asking displacement, how much you have traveled. It means 0, because you are once again from where you went, you came here only, right? So in this case your displacement is 0. You please note down difference between distance and displacement. This is very good example. You please try to learn. ये क्लास 9th में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट? ये मैं यहाँ पे जस्ट बता रहा हूँ कि यू शुड नो दिस ऑल थिंग्स, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. नाउ कम टू द पॉइंट. हाउ कैन यू डिफाइन वेलोसिटी? Velocity can be defined as rate of change of displacement by time. ये d का मतलब होता है infinitesimal. ये this d is infinitesimal, मतलब बहुत for very short interval, right? Very short. d means infinitesimal small. ये d का मतलब होता है कैलकुलस में infinitesimally very small. ठीक है? Now p equals to mv. And how can we define acceleration? We know that acceleration can be defined, you all guys know, right? Acceleration can be defined as dv by dt, right? Now I'm going to use these all concepts here. Now abhi maine kya bola? Rate of change of momentum. And one more thing, whenever in science or like that, basically in science, whenever someone is saying rate, what is the meaning of that? Basically we comparing anything with respect to time. Rate means whatever I'm changing like that, so it means related to time. So I'm saying rate of change of momentum. So rate of change of momentum, how time will come, so it means we have to differentiate both sides with respect to time. So this will become, here you have to write with respect to what? Time. Differentiate. So this will become dp by dt is equal to m dv by dt. अब आप लोग ये ब्रेन में क्वेश्चन एक एराइज होना चाहिए, है ना? आप लोग नहीं पूछते हो, यही यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, जानना चाहिए. यू कैन आस्क सर व्हाई नॉट राइटिंग dm by dt? व्हाई यू नॉट राइटिंग dm by dt? हम लोग dm by dt क्यों लिखेंगे? एक बात बताओ, आप मास कभी चेंज होता है? आप यहाँ पर हो या मून पे जाओ, मास तो इट विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट ना, तो वो कभी वैरी करता ही नहीं है. तो इसी के लिए लिखा जाता है डी, मास को हमेशा कांस्टेंट ट्रीट किया जाता है, ठीक है? इसी के लिए वी कांट राइट dm by dt. इफ समवन इज आस्किंग व्हाई वी कांट राइट सर dm by dt, सिंपली यू हैव टू से कि मास कांट चेंज. हियर कैलकुलस में क्या होता है? जो चीज वेरिएशन होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है, जो चीज कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है. दैट्स व्हाई आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो कि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 0 होता है, क्योंकि उसकी वैल्यू थोड़ी नहीं चेंज हो रही है, राइट? सो नाउ dp by dt हो गया
एम मास हो गया और डीवी बाई डी टी क्या होता है, ये एक्सेलरेशन. सो डीपी बाई डी टी क्या आ गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, force. So from today onward keep in mind, very important, if someone is asking dp by dt is force, and ये कैसे आता है, ये पूरा कैलकुलस से मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स. ठीक है. नाउ सी, नाउ हम लोग को पता है हाउ कैन यू डिफाइन पावर. सी, आप 11-12 में पढ़ते हो, राइट. नीट का एग्जाम दोगे, आप जेई का एग्जाम दोगे, जेई मेंस का एग्जाम दोगे. ये तीनों एग्जाम में कॉमन चीज क्या होती है, कैलकुलस से रिलेटेड फॉर्मूला को डेरिवेशन जो होता है उससे रिलेटेड बेस्ड न्यूमेरिकल्स कभी कभी ये पूछते हैं, राइट. सो हमें फॉर्मूला देखिए, इफ यू वांट टू डू वेल इन फिजिक्स बेसिकली, है ना, so you should know the meaning of calculus, how we can derive any formula. If you simply thinking you can remember the formula, आप कितने फॉर्मूला रिमेंबर कर सकते हो 11-12 में, इतनी फॉर्मूलाज हैं कि ब्रेन स्टॉप हो जाएगा वर्क करना, राइट. सो इंस्टेड ऑफ दैट यू शुड लर्न द कॉन्सेप्ट्स. अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आपको फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है. कॉन्सेप्ट आता है तो आपके पास नौकरी है. ठीक है. तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, जैसे अभी मैंने बात किया पावर. पावर हम लोग क्या कैसे डिफाइन करते हैं, पावर का बेसिकली समवन इज आस्किंग हाउ कैन यू डिफाइन पावर. पावर इज बेसिकली वर्क डन पर यूनिट टाइम. वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पावर. सो वर्क डन, सो वर्क डन क्या मैंने बोला, वर्क डन पर यूनिट टाइम. सी वर्क डन, ये वर्क डन हुआ डी डब्ल्यू बाई डी टी. अब विल आस्क मी सर व्हाई यू राइटिंग हियर डी डब्ल्यू बाई डी टी, व्हाट इज डी हियर, डी इज व्हाट, लीव इट. आपको नहीं पता है इसको लिख सकते हो ना, डब्ल्यू बाई टी हम लोग लिख सकते हैं, लिमिट डब्ल्यू बाई टी लिख सकते हैं ना. सो पी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई टी होता है, राइट. कभी कभी आप नीट का एग्जाम दोगे या जेई मेंस एडवांस का, तो क्या करते हैं पावर के क्वेश्चन में वो क्या लिख देते हैं, फोर्स दे देंगे और वेलोसिटी दे देंगे. अब सोचोगे कि पावर का ये फॉर्मूला में फोर्स वेलोसिटी का रिलेशन क्या है, हाउ टू फाइंड पावर. इफ यू नो दैट मेक अ सेंस. व्हाई आई एम सेइंग दिस, हाउ टू डिराइव. कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर्मूला नहीं पता है, तो हो सकता है कि हो ना, डेरिवेशन हमें आता है तो हम कर सकते हैं, राइट. सो पावर यू कैन डिफाइन. और आपको पता है पावर कैसे लिख सकते हो आप, पावर को वर्क डन बाय टाइम लिख दिया. अब वर्क को क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ये तो हम लोग क्लास 8-7 से पढ़ते आ रहे हैं. वर्क कैन बी डिफाइन एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. और अभी भी मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी. नोट डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन. पावर इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी. Derivations related to calculus is very important aspect according to NEET exam. I'm telling. That's why I'm explaining these all things. Please note down it. Especially NEET exam वाले ये note down कर लो, क्योंकि ये formula derivation बहुत ही important है. आप सोचोगे कि इसका derivation का formula, अरे formula नहीं, मान लो भूल गए, derivation करके तो कर सकते हो, right? Time saving. ये हुआ. अब हम बात करते हैं पावर का फॉर्मूला. अभी भी मैंने बताया, ये प्लीज बहुत ही, पावर का फॉर्मूला क्या क्या होगा मैं एक साथ लिख दूंगा यहाँ पे भी. पावर का फॉर्मूला डब्ल्यू बाई टी भी हमें पता है. पावर का फॉर्मूला एफ इंटू एस बाई टी ऑल्सो यू कैन राइट, वर्क वी कैन राइट. पावर का फॉर्मूला अभी मैंने डिराइव क्या किया, फोर्स इंटू वेलोसिटी. ये तीनों फॉर्मूला आपस में क्या है, वैलिड है. अब डिपेंड करता हूँ कि डेटा क्या है, वो कि क्या पूछ रहे हैं आपसे, राइट. हम लोग और भी तो कर सकते हैं. अभी लोगों, एक बात है, पावर जरूरी नहीं है कि केवल फोर्स में, पावर तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है, राइट. देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज, पावर के जो कॉन्सेप्ट है पूरी फिजिक्स में आते रहता है ना. तो पावर का मतलब क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम. ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया, राइट. अब पावर करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी डब्ल्यू बाई टी होता है, राइट. बट करंट इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग देखें तो वर्क का मतलब क्या होता है वहां पे, their work can be defined as VQ. V is क्या है, potential, and Q is the charge. W equals to क्या होता है, VQ. You substitute this value here. क्या हो जाएगा, V into Q by T, right. ये W equals to V into Q. V is potential,
है ना, Q इज द फ्लोइंग चार्ज इन द सर्किट, सो V इंटू क्यू, और यहाँ पे वर्क की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट, एंड वी नो दैट करंट पर यूनिट टाइम क्या होता है, करंट पर यूनिट टाइम, सॉरी नॉट करंट पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है, करंट, राइट। सो चार्ज पर यूनिट टाइम जो हुआ क्या हो जाएगा, वी आई, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ये V इक्वल पावर इक्वल्स टू वी आई, ये हुआ यहाँ पे, ठीक है। सो दिस ऑल थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, ये कैसे कैसे होते हैं, ये कुछ डेरिवेशंस जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर सीबीएसई 12 बोर्ड एग्जाम में दे रहे हो तो यू कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ 70 25 मार्क्स के जो डेरिवेशन आते हैं, यहीं से डिसाइड होता है कौन से बच्चे फेल होने वाले हैं, कौन से बच्चे पास होंगे। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने फुल आउट ऑफ फुल, सो योर डेरिवेशन पार्ट एंड कैलकुलस पार्ट शुड बी वेरी स्ट्रांग। नाउ इन लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू गाइज यूज टू से ना कि प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, सी लिसन। हम लोग क्या बोलते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, हम लोग क्लास 10th वाले बोलते हैं ना कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, राइट। तो हम लोग को पता है कि इन फिजिक्स इफ यू रिमूव दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, व्हाट ए कांस्टेंट विल कम, राइट। सो R, ये फॉर्मूला हो गया, ये रूल होता है फिजिक्स में कि ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो किसी कांस्टेंट टर्म का ये होता है, तो V इक्वल्स टू आई आर। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि ये प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, हाउ कैन वी से दिस इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, राइट। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ 0.4 8 12, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2, here I'm writing 4, here I'm writing 6। You all guys can see ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये देखो तो ये y कोऑर्डिनेट है और ये वाला x कोऑर्डिनेट है, राइट। 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ये डेटा तो 2 देगा। उसी तरह से ये जब 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और ये जब 12 को डिवाइड करोगे 6 से, यहाँ भी 2 मिलेगा। तो ऐसा केस जब हमेशा जो क्या होता है वैल्यू सेम, यहाँ पे देख रहे हो कि हमेशा 2 है, ये ग्राफ हमेशा देखोगे ऐसे चलता चला जाएगा, यही क्या होता है प्रोपोर्शनलिटी का मतलब होता है। दैट मीन्स द वैल्यू रेशियो शुड ऑलवेज बी कांस्टेंट थ्रू आउट। ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, क्या होता है प्रोपोर्शनलिटी यूनिफॉर्म का मतलब, सो दैट वैल्यू इज नॉट चेंजिंग। ये चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप लोगों को दिखा ना यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा था 4, here 8 and here 12, this is 2, this is 4 and this is 6, you can see from here, and if you draw this is the meaning of proportionality. So your task is to do problems, derivations based on calculus, है ना। So you learn more and more concepts you develop. So hope you guys whatever I'm saying you are getting right. So in coming videos we'll continue with the calculus part. So hope you guys like and subscribe. Please don't forget to comment. So till then, bye bye. Thank you for watching. Have a nice day.